Good morning, students. Today we are going to do the next set of questions, that is question number 32. Okay. Now, what is question number 32? A, B, C, and D are partners in a firm. Okay. So A, B, C, and D are partners. Okay. Sharing profits in the ratio 4:3:1. Okay, 4:3:1. That is the profit sharing ratio. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 1,80,000 rupees. Okay. And there was a reserve of 60,000. Okay, reserve was of rupees 60,000. Fine. So find out the sacrifice and gaining ratio. Fine. Earlier they were sharing it in 2:1:1. Okay, and later on it has changed to 4:3:1. Goodwill was 1,80,000 and reserve was 60,000. So sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Okay, so this is the sacrificing ratio. So A, B, C, and D. Old is 2/6, 2/6, 1/6, 1/6. Okay, and the new ratio is 4/4, 3, 7, 2, 9, and 10. Okay, 3/10 and 2/10 and 1/10. So that is 60, 60, 60 and 60. So it is 20 minus 24, so it is gaining. Okay, then 20 minus 18, so it is 20. It is 2/60. It is sacrificing. Then 10 minus 12, it is gaining. Okay, then 10 minus 6, it is sacrificing. Okay, so that is A and C are gaining and B and D are sacrificing. Okay, now total of goodwill plus general reserve. How much? 1,80,000 and 60,000. Okay, 1,80,000 and 60,000. So that amounts to be 2,40,000. Okay, now let's distribute 2,40,000 among partners. Okay, amongst the partners we are distributing 2,40,000 rupees. Okay, so here A is 4/60 into 2,40,000. So here 4,000, that means 60,000. So what we will do is, general entry will be, पार्टनर्स जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे. A's capital account debit, then C's capital account debit to B's capital account to B's capital account. Okay,
तो ये कितना आ गया 16,000 और ये कितना आ गया 8,000, ये कितना आ गया 16,000, ये कितना आ गया। तो ये आपके पास आ गए हैं। ओके, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल अकाउंट, फाइन, और टू बी इज कैपिटल, टू डी इज कैपिटल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, so that is how this question is to be done. Illustration number 32. Now moving over to illustration number 33. Illustration number 33 is, here we are having Divya and Pooja are partners in the ratio 3:2. Okay, then they have the balance sheet given where sundry creditors are 9,800, general reserve is 23,400, profit and loss account is 4,000, old goodwill is 16,000, land and building is 20, investment is 66, investment fluctuation fund is 12,600. Okay, capitals are given 60,000 and 40,000. Fine. Sundry debtors are 18,600. Then BR is 7,400. Cash in hand is 11,100. And advertisement suspense account is 10,700. तो ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। Partner decided that with effect from 1st April 2015, from 1st April 2015, profit sharing will be 1:1. पहले 3:2 में था, अब किस में हो गया 1:1 में हो गया। ओके, एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट 60,000, पहले थी 66,000 की, अब वो कितनी हो जाएगी 60,000 की। गुडविल जो आ रही है फर्म की वो वैल्यू हो गई 24,000 की, न्यू गुडविल, क्योंकि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो आपकी गुडविल की टर्म्स भी चेंज हो गई। ओके, देन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट में क्या कुछ है जो बांटने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है। अब उसने कह दिया जनरल रिजर्व को तो बांटना ही नहीं है, मतलब जनरल रिजर्व के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ओके, तो जनरल रिजर्व को आपने नहीं बांटना है, तो क्या करना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस इनकम थी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। P&L अकाउंट डेबिट टू पूजा, कैपिटल अकाउंट ओके टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट। ओके, फाइन। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस, 4,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस है आपके पास। ओके, अब इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 5 से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4,000 को, तो 800 आ गया, ये आ गया आपके पास 2,400 और ये आ गया आपके पास 16। ओके, दिव्या की रेशियो 3 है, पूजा की रेशियो 2 है, तो ये आपने पहली एक चीज। पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल है तो डीज कैपिटल अकाउंट, ओके, पीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, ये ओल्ड गुडविल है। ओके, ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ठीक है जी, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो आपके पास गुडविल कितनी है, ओल्ड आपके पास 16,000 की गुडविल है। ओके, 3:2 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया 3,200, तो यहाँ पे आ गया 6,400 एंड 9,600, ये आपने दे दिया। फाइन, अब आपके पास और क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो डीज कैपिटल, ओके,
P is capital account debit to advertisement suspense account। ओके, तो उसके लिए कितना अमाउंट है? 10,700 रुपये। 3:2, तो 10,700 को 5 से डिवाइड कर देते हैं इन 3:2। 2 1 2,140। ओके, अब इसको 3:2, तो 4 280 और 6 420। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गए जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। अब आपके पास क्या था? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पहले 66 की थी, अब आपके पास 60,000 की रह गई। तो आपके पास IFF था कितने का? 12,600 रुपए का। ओके, उसमें से आपने क्या किया? टू इन्वेस्टमेंट क्लेम कितने का दिया आपने? वो इन्वेस्टमेंट क्लेम 6,000 का। 66,000 की थी, अब 60,000 रह गया, तो 6,000 का लॉस हो गया। तो बाकी किसमें बच गया? टू दीज कैपिटल, टू दीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो किस रेशियो में? रिमेनिंग इन 3:2। ओके, तो आपके पास बाकी कितना बच गया? 6600 बच गए। 6600 को 3:2, 5 से डिवाइड कर दो। 5 1 का 5, 16, 5 0 15, 1320। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2640 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3960। ओके, तो ये आपके पास आ गया। फाइन। अब वो क्या कह रहा था कि गुडविल जो नई वैल्यू कर रहे हो, नई गुडविल कितनी है? 24,000 की। जनरल रिजर्व कितना है आपके पास? 23,400 रुपये। ये आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, मतलब 47,400 को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो पहले क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे। ओके, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओके, कितना है? ओल्ड रेशियो थी 3/2 और ये नया 1/2 हो गया, और 2/5 माइनस 1/2। ये कितना गया? 10, 6 माइनस 5। ये कितना गया? 10, 4 माइनस 5। तो इसमें तो सैक्रिफाइस किया और इसमें गेन कर दिया। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओके जी। तो 1/10 कितना है? 47,400। तो ये आ गया ओके 47,040 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास जनरल एंट्रीज हैं। अगर आप इसको दिखाना चाहते हो कि बैलेंस शीट में क्या चेंजेस है, ओके, तो हम बैलेंस शीट के चेंजेस कैसे नोटिस करेंगे? देखो, बैलेंस शीट में क्या चेंजेस आएंगे उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, यहाँ हमारे पास एंट्री थी कितनी थी? 4740 की, और हमने IFF बांटा था टू D's कैपिटल, टू E's कैपिटल।
ओके, तो IFF हमारे पास था 12,600 का, ये 6,000 की थी और 6600 को हमने 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये और ये बनता था। ओके, अब देखो हम जनरल एंट्रीज हम आपके क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस क्या है हमारे पास, दिव्या का 60,000 और इधर कितना है 40,000, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पे P&L कर दो, कितना 1600 और 2400। यहाँ गुडविल राइट ऑफ हो गई, कितनी है 9600 एंड 6400। यहाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो गया, कितना 64204280। ओके, ये राइट ऑफ हो गया। अब ये IFF आ गया डिस्ट्रीब्यूट होके 3960 और 2640। फिर हमने यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री की, ओके, बाय पीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, तो डी वाला P में जाएगा और P वाला D में। ओके, तो ये आपके पास कैपिटल अकाउंट हमारे पास बन रहा है। ओके, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास ये टोटल बन जाएगा 71,100 और ये 40 6 12 4, ओके 44,240। और यहाँ हमारे पास बैलेंसेस निकाल लो 15 और 16,020, 71 में से 16 गए तो 55,080। ओके, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 28,800। ये आ गया आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये हमारी लायबिलिटीज है, ये एसेट्स हैं। ओके, तो पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज में हमने देखो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं किया, कितना 20,000 का। ओके, इन्वेस्टमेंट हमारी पहले कितनी थी 66, अब कितनी रह गई 60, तो इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 60,000। ओके, फिर हमारे पास डेटर्स कितने हैं पुराने, डेटर्स 18,600 के हैं वैसे के वैसे, BR 7,400 रुपए के हैं वैसे के वैसे, कैश 11,100 रुपए के। ओके, अब आ जाते हैं लायबिलिटीज साइड में। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स को हमने चेंज नहीं किया, 9,800 किया। ओके, जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तो जनरल रिजर्व वैसे का वैसा ही दिख रहा है 23,400 रुपये। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर दिया, 4,000 को बांट चुके हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब कैपिटल में चेंजेस आ गए। ओके, कितना आ गया 55,080 और 28,820, ये आपके पास आ गए। फाइन, 1 8 8 16 20 21 13 3 16 25 27 9 और 11, ठीक है जी। और इधर कितना 9
15, 16, 17, देखो 1, 2, 4, 6, 10 और 11। तो ये आपके पास इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ illustration number 32 and 33 is to be done. Now after this we are moving toward the next set of questions, next set of questions which are related to revaluation account. Okay, we are going to understand the next set of questions which are related to revaluation of assets and liabilities. Okay, now revaluation क्या होती है? मतलब हम नए सिस्टम में जा रहे हैं, हमने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाई है बिटवीन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उन्होंने नई प्रॉफिट शेयरिंग एग्री की है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि नए सिरे से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है पार्टनरशिप फर्म। अब जब नए व्यू पॉइंट से, नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे, एग्रीमेंट पे आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में, सो इट रिक्वायर्स टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर रीवैल्यूइंग, मतलब हम एसेट्स की जो लाइबिलिटीज की वैल्यूज हैं रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑल्सो। तो हमने क्या किया कि हमने नया एक एग्रीमेंट एंटर किया, तो जो हमारे पास जो भी पुराने ओल्ड एसेट्स लाइबिलिटीज थे हमने उनको रीअसेस करना शुरू कर दिया बिफोर एंटरिंग इनटू द न्यू एग्रीमेंट। तो वो जो रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमारा क्या होगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, पहले तो मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसका बताता हूँ कि कैसे लिखी जाती है। Whenever increase in liability is happening, okay, amount is written on this side. Increase in value of asset is written on this side. Decrease in value of asset, decrease in value of liabilities. Okay, any we can say unlocated asset, okay, any unaccounted, located की जगह क्या लिखेंगे, accounted liability, और इधर भी unaccounted। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमने इसे क्या कहा है कि ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये तो साइड क्या होती है, एक्सपेंसेस, और ये साइड क्या होती है, इनकम। अब व्हेन अ लायबिलिटी, अब देखो हम क्या असेस कर रहे हैं कि लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रही है।
प्रीवियसली और करंट, ये दो वैल्यूज लिख रहा हूँ, प्रीवियस वैल्यू लिख रहा हूँ और करंट वैल्यू लिख रहा हूँ। पहले मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं, ओके, प्रीवियसली वो थे 4000, अब हो गए 5000। एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया इसका, ओके 1000। क्या हुआ, अप फॉर इंक्रीज, डाउन फॉर डिक्रीज, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लायबिलिटी बढ़ना मतलब खर्चा, तो यहां हम लिख देते 1000। अब अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, पहले 5000 थे, अब 3000 रह गए, एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया 2000 का, और वो क्या हुआ है, डिक्रीज, मतलब आपकी लायबिलिटी का खर्चा जो है वो कम हो गया। ओके, अब आ जाओ आपके पास अनअर्न्ड इनकम। ओके, ये पहले थे 6000, अब हो गए 6500, तो ये आ गया 500, तो लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो। ओके, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ेगी, जो चेंज है एब्सोल्यूट चेंज वो बढ़ेगा। ओके, तो क्या है, नुकसान होगा। एब्सोल्यूट चेंज कम होगा तो क्या होगा, फायदा होगा। तो ये हमने समझा है लायबिलिटीज कैसे चेंज हो रही हैं। अब हम समझते हैं कि एसेट्स कैसे चेंज होते हैं। ओके, now is another aspect is assets. Okay, पहले तो क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रीवियस, करंट, एब्सोल्यूट चेंज, और इंक्रीज, डिक्रीज। ओके, मान लीजिए आपके पास पहले क्या था, स्टॉक था, ठीक है, पहले 8000 का था, अब 10000 का, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2000 का हो गया स्टॉक आपका। ओके, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ, मतलब आपके पास एसेट्स बढ़ गए, ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। अब यहाँ पे है डेटर्स, पहले थे 7000 के, अब रह गए 6000 के, 1000 की वैल्यू कम हो गई। ओके, 1000 की वैल्यू कम हो गई तो डिक्रीज। ओके, तो मतलब बैड डेब्ट्स में चले गए। 1000 मतलब हमारे पास क्या हो गया कि सॉरी, let us understand new set of new concept which is revaluation of assets. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स तब की जाती है जब भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, चाहे एडमिशन पे, चाहे रिटायरमेंट पे, चाहे सिंपली आपके ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि कई बार हम ये डिसाइड करते हैं कि ओके, नए कंसेप्ट पे, नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को री असेस करना चाहते हैं। ओके, and re-understand करना चाहते हैं where do the assets and liabilities stand today, and then we will distribute
those profits and losses before starting the new agreement. Okay. अब इस revaluation of assets को हम एक नया नाम और क्या देते हैं, that is profit and loss adjustment account. Okay, तो अगर profit and loss है तो डेबिट साइड क्या होगी हमारे पास, एक्सपेंसेस साइड होगी, और क्रेडिट साइड क्या होगी हमारे पास, इनकम साइड होगी. ओके, तो मतलब डेबिट साइड में हमारे पास नुकसान आ रहा है और क्रेडिट साइड में हमारे पास इनकम आ रही है. अब कैसे कैसे आ रही है, फर्स्ट इज इंक्रीज इन लायबिलिटीज. ओके, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हमारे को नुकसान होता है. ओके, और अगर इंक्रीज इन एसेट हो जाए तो हमें फायदा होता है. ओके, सेम वे डिक्रीज इन एसेट हो तो कंपनी को नुकसान है, फाइनेंशियल पोजीशन में लॉसेस हैं. ओके, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज हो तो कंपनी को फायदा होता है. फिर है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. ओके, अभी तक कुछ ऐसी लायबिलिटीज थी जो रिकॉर्ड नहीं की गई, अब वो रिकॉर्ड कर ली गई हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. तो नुकसान हो गया. और इधर क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स. वो एसेट्स जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए गए थे उनको रिकॉर्ड कर लिया गया, अब उससे फायदा हो गया. अब ये देखते हैं कैसे इनको रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज कैसे है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यहाँ पे क्या है, पहले हम लायबिलिटीज का देखते हैं. यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, ये इंक्रीज के लिए, ये डिक्रीज के लिए. ठीक है जी. मान लीजिए हमारे पास क्रेडिटर्स थे पिछले साल 5000, अब हो गए 4000, तो एब्सोल्यूट चेंज क्या हो गया, 1000 का डिक्रीज हो गई है, तो वो हमें फायदा है. ये फाइन. अगर मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे पिछले साल 7000 थे, अब हो गए 8000, तो 1000 की लायबिलिटी बढ़ गई, मतलब नुकसान हो गया. ठीक है. अब आ जाते हैं एसेट्स में. ओके, एसेट्स में क्या है कि मान लीजिए डेटर्स थे पिछली बार डेटर्स हमारे थे 30,000. ठीक है, मतलब उसमें से कुछ बैड डेब्ट्स हो रहे थे, 5,000 के बैड डेब्ट्स थे. ओके, या हम ऐसे लिख देते हैं 35,000 माइनस 5,000 दैट वाज 30,000. अब उसमें से क्या हुआ कि हमारे जो 5,000 डूब रहे थे उसमें से 3,000 रिकवर हो गए, तो टोटल बैड डेब्ट्स हो गए हमारे पास 33,000. ओके, तो मतलब 5,000 जो डूब रहा था पैसा उसमें से 3,000 रिकवर हो गए, तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल डेटर्स. तो मतलब यहाँ पे 3,000 का बेनिफिट. ओके, तो इंक्रीज इन एसेट हो गया. फाइन. फिर है आपके पास, मान लीजिए स्टॉक है, पिछले साल 8,000 का था, अब पड़ा है 6,000 का स्टॉक, तो 2,000 कम हो गया स्टॉक, मतलब ये डिक्रीज हो गया, तो नुकसान हो गया हमें. ओके, आउटफ्लो हो गया हमारा. फाइन. स्टॉक अगर कम हो जाता है तो उससे क्या है कि हमारे पास मान लीजिए हमारा डेप्रिसिएशन हो गया या एक्सीडेंट से लॉस हुआ है स्टॉक का. ओके, सेल नहीं कह रहे हम क्या कह रहे हैं, एक्सीडेंट से लॉस हो गया या कुछ फायर थेफ्ट हो गई, तो उससे हमें नुकसान हो गया. नुकसान हुआ तो टोटल स्टॉक जो अवेलेबल था वो कम हो गया 8,000 से 6,000, क्योंकि 2,000 का हमारा स्टॉक जल गया था या एक्सीडेंट हो गया था, तो वो क्या है, नुकसान हो गया, तो वो डिक्रीज इन एसेट. ओके, गेन वगैरह नहीं आते हैं, ये ध्यान रख लेना.
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में गेन का कोई मतलब नहीं है। इंसिडेंटल लॉस इंसिडेंटल गेन से नहीं, रेवेन्यू लॉस होना चाहिए, रेवेन्यू लॉसेस रेवेन्यू गेन्स। ओके, तो यहाँ पे रेवेन्यू करंट एसेट्स में ही मूवमेंट ज़्यादा आती है यहाँ पे। वैसे तो फिक्स एसेट में मतलब साल के दौरान आपकी जो डेप्रिसिएशन है, इंक्रीज डिक्रीज है, वो आएगी एसेट्स की। तो यहाँ पे क्या है, आपके एसेट्स इंक्रीज, जनरली हमारे पास ऐसा आएगा कि आपके पास इंसिडेंटल गेन्स नहीं होंगे। ओके, ड्यूरिंग द ईयर आपके गेन्स या ड्यूरिंग द ईयर आपके लॉसेस हैं जिनको आप रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो आप अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हैं ये आपके पास। ओके, तो वो खर्चे जो आपने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किए, वो खर्चे अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब वो फायदे जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए, वो अब आप रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि एसेट्स हमारे, जितने एसेट्स हमारे पास होंगे, हमारे पास पे ऑफ करने की कैपेसिटीज जल्दी होंगी। सो दैट इज व्हाट द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। ओके, और अगर यहाँ पे ये ज़्यादा हैं, these are more than this, ओके, तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, और अगर अब क्या है दूसरा केस, ये ज्यादा है, मोर, ओके, देन दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन। ओके, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओके, इसे कहते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। ओके, तो फर्स्ट इज 34th इलस्ट्रेशन। अब हम कौन सी इलस्ट्रेशन करेंगे, 34th इलस्ट्रेशन करेंगे। तो 34th इलस्ट्रेशन में आपके पास क्या है, ABC 3 पार्टनर्स हैं विद अ प्रॉफिट शेयरिंग 3:1। ओके, नाउ फ्रॉम, अब इसके पास देखो बैलेंस शीट दे रखी है, उसने रिजर्व फंड दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दे रखे हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो है जो एम्प्लॉयज को क्या फंड में पैसा जाता है, कुछ वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ओके, दूसरी साइड पे आपके पास फिक्स एसेट दिए हैं, करंट एसेट्स दिए हैं। ओके, प्लीज डू कंसल्ट योर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 34 ऑफ चैप्टर नंबर 3 एज पर न्यू बुक्स एंड 2 एज पर दी ओल्ड बुक्स, के उसमें बैलेंस शीट है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन अपनी बुक में से देखोगे, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड, तो मतलब 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसाइड किया 1:1:1 में प्रॉफिट शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना उन्होंने शुरू किया। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि गुडविल उस दिन क्या वैल्यू की, गुडविल ऑन दैट डे ₹3 लाख, यह फर्म की गुडविल मेजर की उसमें। ओके, फिर उसने कहा फिक्स एसेट्स आपके डेप्रिशिएट हो रहे हैं बाय 10%। ओके, फिर डेप्रिशिएट बाय 10%। फाइन, अब यहाँ पे 2 बाय का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये 2 हुआ है, अब 2 हुआ है या बाय हुआ है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस ऑफ 3000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ फिक्स, आपने
एक्सपेंसेस बियर किए हैं, एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स वर बॉर्न। कितने के थे एक्सपेंसेस आपके पास? 3000 रुपए। तो ये भी आपका नुकसान हो गया। ओके, तो फिर आपने क्या किया है? कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन द प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, जो कैपिटल होगी वो पार्टनर्स की किस रेशियो में होगी? अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो कैपिटल बटेगी। चलो जी, अब यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया। पहले तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास गुडविल आई है। फाइन, गुडविल कितनी आई है? 3 लाख रुपए आई है गुडविल। ओके, तो गुडविल को हम पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं। ओके जी, तो 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3 एंड 1/6 माइनस 1/3। तो ये कितना का? 6, 3 माइनस 2, ये 6, 2 माइनस 2 और ये 6, 1 माइनस 2। तो यहाँ आ गया 1/6 का सेक्रीफाइस और यहाँ नील और ये आ गया 1/6 का गेन। ओके, तो अब इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या डाल देंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 6 × 3 लाख, तो 50,000 और ये तो हो गया आपकी गुडविल का सिस्टम। ओके, अब आ जाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये ए स्टेप आ गया। अब आ जाओ बी स्टेप। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट भी बना रहा हूँ और जनरल एंट्री भी दिखाऊंगा कैसे। फिक्स एसेट डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो आपकी बुक्स में फिक्स एसेट कितने दिए हुए थे? 1,50,000। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे फिक्स एसेट्स कितने से डिक्रीज हो गए? 10% से, तो 15,000। 1,50,000 का 10% कितना हुआ? 15,000। तो यहाँ पे लिख दिया। एक्सपेंसेस टू बैंक, कितने एक्सपेंसेस बियर किए थे? 3,000 को। तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारे पास? ओके, टोटल लॉस हो गया हमारे पास कितना? 18,000। ओके, अब ये पार्टनर्स में चले गया। ए बी सी 3:1 की रेशियो में है, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3:1 में 6, 3,000, 6,000 एंड 9,000। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ठीक है जी, कहाँ आ जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 18,000, ये 9,000, ये 6,000 और ये 3,000। तो इस तरीके से आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। ओके, अब आपके पास एक रिजर्व फंड दिया हुआ था। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। 2A, 2B, 2C। 18,000 था, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 9,000, 6,000 और 3,000। ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। ओके, रिजर्व फंड। फिर आपने क्या? रिवैल्यूएशन का लॉस और उधर गुडविल बांट दी। ओके, और कुछ है आपके पास बांटने के लिए? नहीं, फाइन। तो ये आपके पास आ गया है। और ओके, तो अब हम क्या करते हैं? एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अब हमने कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि उसने कहा है जो फर्म की कैपिटल है वो नई प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब 1:1:1।
तो पुराने मामले को सेटल करते हैं सारे को। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए बी सी, कैपिटल्स कितनी थी इनके पास, 50 40 30। ओके, अब यहां से ले लो C2A इज कैपिटल, $50,000 और बाय C इज कैपिटल यहाँ 50। ठीक है, अब अगला डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिवैल्यूएशन का लॉस है टू रिवैल्यूएशन, कितना कितना, 9,000, 6,000, 3,000, ये आपके पास दे रखा है। और रिजर्व फंड में क्या था, 9,000, 6,000, 3,000, और कुछ बचा नहीं, तो अब क्या करेंगे, पहले तो टोटल निकाल लेते हैं, 33,000, 46,000, 1,09,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 1,00,000 ये बच गया, 46, 40,000 ये बच गए, 53 और 33, तो यहाँ पे कितना आ गया, बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। तो ये नेगेटिव आ गया सी का और ए और बी का आ गया पॉजिटिव। अब देखो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1,00,000 ए से आया, ओके, 40,000 बी से आया, 20,000 नेगेटिव सी से आया, तो टोटल कितनी आ गई, 1,20,000। ओके, अब वो क्या कह रहा था कि हमारी जो कैपिटल है, नई कैपिटल फर्म की, वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के। ओके, किसके बराबर होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो अब कितना लेके आएंगे, कितना लेके जाएंगे, वो ढूंढना है। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, 1,00,000, ये 40,000, और यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 20। ओके जी, अब 1,20,000 है, इसको किस में बांटा है, 1:1:1, 3 से डिवाइड कर दो, 40,000, 40,000, 40। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 एंड 40,000। ओके, तो इन दोनों का तो कोई लेना देना ही है, 40-40 खत्म कहानी। ओके, अब ये 1,00,000 है, ये 40 है, तो ये क्या करेगा, 2A इज करंट अकाउंट 60। ओके, और यहाँ पे बाय सीज सॉरी, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगी। ओके, तो अब इसके लिए एंट्री क्या कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, कितना, 60,000, और उधर सीज करंट अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये इस तरीके से आपका डेफिशिएट और गेन इन केस ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 34
तो हमने क्या कुछ किया इसमें, पहले तो हमारे पास ये था, फिर उसने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। गुडविल उसने दे दी 3 लाख है फर्म की। फिक्स एसेट आपका डिक्रीज कर रहा था 10% बाय डेप्रिसिएशन, और एक्सपेंसेस ऑन एसेट्स कर दिए थे आपने 3000 के। तो हमने पहले क्या किया, गुडविल को आपस में पार्टनर्स में शेयर किया एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस था 3/6, 2/6, 1/6 में से 1/3, 1/3, 1/3 माइनस कर दिया। तो ए और सी में रेशियो निकल के आई, सी ने गेन किया, ए ने लॉसेस किए। ओके, फिर हमने फिर उसमें हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। ये हो गई हमारी गुडविल का ट्रीटमेंट। ओके, फिर हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। फिक्स एसेट्स आपके डिक्रीज किए थे, 15,000 आ गए 10%, और खर्चा जो किया था आपने 3,000 था, तो टोटल 18,000 आ गया। रिवैल्यूएशन आपने बांट दिया लॉस, तो ये आ गया सेकंड स्टेज। ओके, अब आ जाओ थर्ड स्टेज पे। रिजर्व फंड था आपके पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल में। फिर हमने क्या किया, कैपिटल एडजस्ट करनी थी। अब उसने कहा कि जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है वो नए प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट बना दिया ABC, और उसके बाद हमने उसकी वैल्यूज पुट अप कर दी 50, 40, 30। फिर ये वाली एंट्री पुट की, C to A इज कैपिटल, 2A बाय C। तो 2A तो C के अकाउंट में चलेगा, बाय C A के अकाउंट में चलेगा। फिर है रिवैल्यूएशन, रिजर्व फंड था वो बांट दिया था, तो 963 में। ओके, और रिवैल्यूएशन का लॉस 963 में आ गया। फाइन, तो बैलेंस कैरेट डाउन आ गया। अब ये यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया आपने। अब ब्रॉट डाउन में यहाँ हमारे पास टोटल फर्म की कैपिटल आई 1,20,000। 1,20,000 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये कितने हो गए, 40, 40, 40 ईच। तो ये रख दिया, तो 60,000 यहाँ पे एक का घंट ले जाएगा और ये लेकर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ओके।